پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے جلالی، مبارک اور خوبصورت ترین نام میں آج پھر آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے اور شکر گزار ہوں اپنے خداوند کا کہ ایک بار پھر بطور بانس یہ وقت میری زندگی میں خداوند نے عنایت فرمایا کہ خداوند کے ممسوحوں کی معرفت کی گئی پرستش اور ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے میں برکت پانے والا ہوں، اور اب خدا کا کلام جو خداوند نے آج مجھے دیا ہے اس کے ذریعہ سے میں آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرنے والا ہوں۔ میں ان ساری باتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا اور سارا جلال خداوند اپنے خدا ہی کو دیتا ہوں۔ ہم بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 18 باب کے اختتام پر ہیں۔ ہم بابل کی تباہی، خدا کی طرف سے اس کے مذہبی، سیاسی اور کمرشل پہلو کے اعتبار سے ہوتی ہوئی عدالت کی بابت ہم نے بہت کچھ دیکھا، اور ایک آخری کڑی باقی ہے جس پر آج میں مزید بات کرنا چاہوں گا۔ یاد کیجئے باب 4 سے لے کر 18 باب کے اختتام تک کا یہ وہ حصہ ہے جس کو ہم مصیبت کے زمانہ کے طور پر یاد کرتے اور جانتے ہیں۔ مصیبت کے زمانے سے کے آنے سے پیشتر کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے مسیح خداوند کو اپنا جیون نہیں دیا اور اپنے دل کے تخت پر مسیحا کو بطور راجا بٹھا نہیں لیا، ان تمام کو اس مصیبت کے زمانے سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ اس دوران بہت سارے گواہ گواہی دیں گے، لیکن اب خدا پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے وہ اپرچونٹی گئی کہ مسیح کے ساتھ وہ آسمان پر جائیں، کیونکہ مسیح پہلے ہی اپنی کلیسیا کو لے کر آسمان پر جا چکے ہوں گے۔ اب مصیبت کے زمانے میں ایمان لانے والے لوگوں کو اس ایمان کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہم نے بہت سی اس موضوع پر باتیں کی ہیں جن میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑے گا اس 1000 سالہ بادشاہی میں داخلے کے لیے۔ اب مصیبت کے زمانے کے بالکل اینڈ پر 18 باب کی 21 آیت سے لے کر 24 آیت تک آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 21، 22، 23 اور 24 زیادہ تر مواد وہ ہے جس پر ہم کسی حد تک بات کر چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیات بھی جو کمرشل یا اکونامیکل بابل ہے اس کی تباہی سے متعلق بات کر رہا ہے، یہ حصہ جس پر میں اور آپ اس وقت مل کر بات کریں گے۔ یاد کیجئے کہ ان آیات میں
यूं लिखा है, फिर एक जोर आवर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानिंद एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुंदर में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। और बरबत नवाजों और मुतरबों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा और चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी ना सुनाई देगी और चराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी और तुझ में दूल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। ये जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, आयत 21 के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना यूं फरमाते हैं कि एक जोर आवर फरिश्ता, इससे पेशतर 2 मर्तबा हम जोर आवर फरिश्ता के अल्फाज देख चुके हैं। उसने क्या किया? बड़ी चक्की के पाट की मानिंद, चक्की का पाट नहीं लेकिन पाट की मानिंद एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुंदर में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। याद कीजिए कि मुकद्दस यूहन्ना एक जोर आवर फरिश्ता को देखते हैं। उसने एक भारी पत्थर उठाया और उस पत्थर को उसने समुंदर में फेंक दिया और यह कहते हुए कि अब बाबल इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर उसका नाम निशान मिट जाएगा, नजर नहीं आएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह बाबल की अदालत की तरफ इशारा है। कौन सा बाबल, इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन कई उलमा आज की वो मुमलकतें या वो सल्तनतें या वो हुकूमतें या वो ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और दुनिया को डोमिनेट करने के लिए सबसे ज्यादा वसाइल, सबसे ज्यादा फौजी और असला उनके पास है। कई उलमा ये कहते हैं कि यही बाबल है। वह खुदा के कलाम के मुताबिक हम बाबल की अदालत से मुताल्लिक देखते हैं। मुख्तलिफ ख्याल उलमा के हो सकते हैं, लेकिन हर वो जिसने दुनिया को गुनाह की तरफ और बुत परस्ती की तरफ खुदा से मोड़कर किसी और तरफ लगाया, उसकी अदालत से मुताल्लिक हम यहां पर देख रहे हैं। और यह भी याद रहे कि इस बाबल की अदालत से मुताल्लिक
यूं कह सकते हैं कि सदियों पहले अंबियाए अकबर में से यर्मिया नबी ने ऑलरेडी नबूवत की थी। कहां पर? जब मैं यर्मिया 51 बाब पढ़ता हूं तो उसकी 61 से 64 इन आयात में इस बाबल की अदालत का सदियों पहले से जिक्र मौजूद है। देखिए खुदा के कलाम में कैसी रब्त पाई जाती है कि इन तमाम कुतुब के पीछे एक ही मुसन्नफ है जो खुदा है, और वो अपने नबियों और रसूलों और पैगंबरों को, चुने हुए बरगजीदा लोगों को हर जमाने में उनको पैगाम देता रहा। वो लिखते रहे और कड़ी से कड़ी मिलती चली गई। यर्मिया इसका 51 चैप्टर और उसकी 61 से 64 लिखा है। बेहतर होगा 60 से पढ़ लो। और यर्मिया ने उन सब आफतों को जो बाबल पर आने वाली थीं एक किताब में कलम बंद किया। यानी इन सब बातों को जो बाबल की बाबत लिखी गई है। और यर्मिया ने सिराया से कहा, जब तू बाबल में पहुंचे तो इन सब बातों को पढ़ना और कहना, ऐ खुदावन, तूने इस जगह की बर्बादी की बाबत फरमाया है कि मैं इसको नेस्त करूंगा, ऐसा कि कोई इसमें ना बसे, ना इंसान ना हैवान, पर हमेशा वीरान रहे। और जब तू इस किताब को पढ़ चुके तो एक पत्थर इससे बांधना और फिरात में फेंक देना और कहना, बाबल इसी तरह डूब जाएगा और उस मुसीबत के सबब से जो मैं उस पर डाल दूंगा फिर ना उठेगा और वो मादा होंगे। यर्मिया की बातें यहां तक हैं। इन आयात में और मुकाशफा 18 की 21 में जो बात पाई जाती है, ये एक ही तरफ इशारा है। बाबल जिसने दुनिया को गुनाह की तरफ माइल किया, अय्याशी की तरफ, खुदा से हटाकर अब उसकी अदालत हो रही है। ये चक्की का पाट भारी पत्थर क्यों? ये एक ऐसी इस्तिलाह और हकीकत और सच्चाई है जिसका जिक्र खुदाबंद यीशु मसीह मुनज्जिए आलमीन नबी किया, बुजुर्ग मती की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस और इसका 18 बाब और इसकी 6 आयत। मसीह ने फरमाया, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, और उसके लिए यह बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुंदर में डुबो दिया जाए। किसको? वो जो दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनता है, उसके लिए सजा यह है कि उसको गहरे समुंदर में डाल दिया जाए, एक भारी पत्थर के साथ बांधकर। और यह है वो अदालत की बात जो खुदा के कलाम में मैं और आप देखते हैं। इसलिए आज हमारे लिए यह एक जरूरी बात है कि खुदा के कलाम में
कड़ी से कड़ी मिलती हुई हम देख रहे हैं कि कैसे यिर्मयाह ने भी वैसी ही नबूवत की, मसीह खुदावंद के भी यही अल्फाज हैं, और अब मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत जो बाबल की अदालत की बात हो रही है वो भी सेम उसी तरह से ही है। ये चक्की का पाट यानी एक भारी पत्थर बांधकर सताए समुंदर में डाल देना, डुबो देना, तह में चला जाना, यानी ये जो दुनियावी निजाम है, जिस निजाम ने दुनिया को अपनी हरामकारी की मै पिलाई, अपनी तरफ माइल किया, उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाने की बात हो रही है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, हमने ऑलरेडी इस मौजू पर बात की है कि यह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की अदालत की बात हो रही है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना लाए और ना ही मसीह यीशु को कबूल किया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या देखते हैं। जब हम अगली आयत में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि और क्या होता है। 22 आयत में, और बरबत नवाजों और मुतरबों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी, तुझ में यानी बाबल में, और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा, और चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी ना सुनाई देगी। याद कीजिए, इस आयत के मुताबिक हमें बाबल में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा जाने से मुताल्लिक बात नजर आती है। और यह भी बताता चलूं कि हम खुदा के पाक और जिंदगी बख्श कलाम में जब हम 16 बाब का मुतालिया कर रहे थे तो 16 बाब की 18 आयत में हमने यह देखा कि जलजला के जरिया से बाबल की तबाही होगी। फिर 16 बाब की 21 आयत में हमने देखा कि मन मन भर के ओले बरसेंगे और यह दुनियावी, मजहबी और सियासी निजाम तबाह हो जाएगा। जलजले पॉसिबल है कि भूचाल, आतिशफशां का फटना। और फिर 18 बाब की 18 आयत में हमने देखा था कि बाबल के जलकर खाकस्तर होने का हमें जिक्र मिलता है। और यह इस बात की तरफ इशारा है कि जलजलों के जरिया से अदालत, आसमान से मन मन भर के ओले बरसने के जरिया से अदालत, पॉसिबल है कि यह एटम बम्स की तरफ इशारा हो। और फिर उसके बाद उसको आग से जलाकर भस्म कर देना, टोटली मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाना। और फिर जो बच गया उसको आखिर पर पूरे के पूरे उस इलाके को समुंदर की तह में डाल देना कि फिर उसका पता तक ना चले। याद होगा कि मैंने गुजरी बाइबल स्टडी में यह अर्ज किया था कि जो सदूम और अमूरा है, माजी में थे, उनकी बदकरदारी और हरामकारी और उनके गुनाह की सदा आसमान तक पहुंची और खुदाए कादिर ने उनकी अदालत ऐसे की कि आसमान से गंधक
और आग बरसाकर सदूम और अमूरा को सफाए हस्ती से मिटा डाला। और आज जहां पर सदूम और अमूरा थे, उलमा बताते हैं कि वो बहरे मुर्दार के किनारे पर है। सदूम और अमूरा समुंदर में, उनका नाम निशान नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप साइड पर किनारे पर खड़े हों और आप बहरे मुर्दार की तरफ देखें, तो जहां पर सदूम और अमूरा के इलाके पाए जाते थे, कहते हैं कि वहां गोया अभी भी बुखारात उठते हुए नजर आते हैं। मैंने नहीं देखा, मैं उलमा की रिसर्च की बात कर रहा हूं। तो वो खुदा जो माजी में ऐसा करता रहा, अब भी और आइंदा भी कर सकता है। खुदा जालिम नहीं है। उसकी इस बात में खुशी नहीं कि कोई भी शरीर हलाक हो। वो ये चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। लेकिन जब कोई खुदावंद के उस प्लान और मंसूबे को कबूल नहीं करता, तो हतमी नतीजा फिर यही है कि खुदा उसकी रास्त और आदल होने के एतबार से अदालत करे। इस 23 आयत के मुताबिक, 22 आयत के मुताबिक जैसा हम यहां पर देखते हैं, क्या है? बरबत नवाजी, और ये शुरू में मौसीकी की बात हो रही है, और फिर नरसिंगों के फूकने की बात हो रही है, और फिर हर तरह के कारीगर की बात हो रही है, और फिर चक्की की आवाज की बात हो रही है। लिखा है, ये तुम में यानी इस बाबल में फिर कभी सुनाई ना देगी। क्या मतलब है? इससे मुराद यह है कि बाबल, तू एक बड़ा शहर बाबल था, और तूने अपनी मौसीकी और अपने डिस्को के वसीला से लोगों को अपनी तरफ माइल किया और उनको अयाशी की मैप पिलाई। अब वो तुम्हारे साज और अब वो तुम्हारी मौसीकी खत्म हो जाएगी टोटली। और बाबल, अब तुझ में मजीद कोई कारीगर नहीं होगा कि वो आलाते मौसीकी ही नहीं, जो दीगर कारीगरी के काम हैं वो कर सके। A to Z सब का खात्मा मुकम्मल तौर पर, टोटली तौर पर खत्म होने की यहां पर बात हो रही है। गोया इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बाबल की मुकम्मल तौर पर तबाही और इख्तिताम की बात हो रही है। इसलिए कि बाबल अपनी अयाशी में और अपने मैं के नशा में धुत था और गुनाह की तरफ लोगों को माइल कर रहा था। आज की दुनिया में भी जो दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, ये अभी तो कोविड, लेकिन इससे पेशतर की बात, आप भी इस बात के गवाह हैं कि बड़े बड़े शहरों में कुछ साल पहले रात गए तक, इवन आज भी कई जगह पर फूड स्ट्रीट्स हैं जो फुल नाइट खुली रहती है। डिस्कोज और बार्स गोया लोगों को दावत देती है कि तुम इस तरफ माइल हो। यह सब कुछ जल्द खत्म होने वाला है। इसका नामो निशान फिर बाकी ना रहेगा। हम इन बातों से मुताल्लिक अपने आप को
खबरदार करें और मसीह की आमद सानी के पहले हिस्से से पहले पहले अपने आप को फुली खुदाबंद अपने खुदा के स्पुर्द करें। और वो शहर बाबल जिसमें अब कुछ भी नहीं होगा, फिलहाल तो मौसीकी, डांस, डिस्को, जो कुछ है वो सब कुछ खत्म। लेकिन 23 आयत, और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी। बाइबल मुकद्दस के लिखे जाने के वक्त चिराग केरोसिन आयल के साथ या दूसरे आयल के साथ जलने वाले चिराग दीप थे, इसलिए यह टर्म इस्तेमाल हुई है कि चिराग की रोशनी फिर नहीं चमकेगी, टोटली डार्कनेस, तारीकी। और तुझ में दूल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी ना सुनाई देगी। यानी वो जो शादियां हो रही, वो जो बिया हो रहा था, जैसे नूह के वक्त की बात हमें अनाजील में भी मिलती है। अब वो मौसीकी, वो ढोल, वो दफ, वो बाजे, अब सब कुछ मौकूफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं। जादूगरी, ये लिटरली जादूगरी भी हो सकती है, लेकिन ये एक इस्तिलाह भी है। मसलन अगर हमारा छोटा सा बेटा बेटी हो, जो बिल्कुल छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा, और वो किसी के पास ना जाता हो, लेकिन अगर आप आते हैं और आप उसको बुलाते हैं, आ जाओ, और फिर वो बेबी अगर अपने बाजू खोलकर आपकी तरफ आता है, सारे घर वाले हैरान हो जाएंगे और कहेंगे, दसो जी काके ते की जादू कीता जे। और ये जादू से मुराद रियली जादू नहीं है, ये एक टर्म इस्तेमाल हुई है कि आपने क्या किया, ये तो किसी के पास नहीं जाता, लेकिन आपकी तरफ आ गया है। ये कैसे हुआ? और यही बात हम यहां पर देखते हैं कि जिन सौदागरों को और ताजरों को, ऐश प्रस्त लोगों को तूने अपनी तरफ माइल किया, अब उन सब की बाबत लिखा है, कौमें तेरे इस गुनाह के सबब से बर्बाद हुई, गुमराह हुई और तबाह हुई है। यूं लगता है कि इस शहर बाबल से अब कोई आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इंसानों की भी। मजहबी और तजारती निजाम, सियासी निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म। और यह भी यूं लगता है कि बाबल मुकम्मल तौर पर शहर खामोशां बन चुका होगा, कब्रिस्तान की मानिंद। लेकिन वो नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे का सारा समुंदर की तह में चला जाएगा। इस बाब की आखिरी आयत 24, और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया, इसलिए गोया उसकी अदालत हुई कि बाबल ने नबियों का खून किया, खुदा के लोगों का, मुकद्दसों का खून किया, और जमीन के मकतूलों का खून इसमें पाया गया। इतनी ज्यादा खून की होली यहां पर खेली गई है। इसलिए बाबल का यह अंजाम है। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि 3 मर्तबा 6 बाब में कहा गया,
मुकद्दसीन नबी और रसूल जो शहादत पाए, मज़बा कुर्बानगाह के मज़बा के नीचे उनकी रूह है खुदा के हुजूर प्रोटेस्ट करती है और कहती है, खुदावंद तू कब तक हमारे खून का इंसाफ ना करेगा, बदला ना लेगा। हम गुजरे हफ्ते भी देख रहे थे और आज यहां पर यानी 20 आयत में भी हमने देखा और फिर 24 में भी हम देख रहे हैं कि उन नबियों और मुकद्दसों का खून यहां पर हुआ, इसलिए इस बाबल की अदालत हुई और ये हतमी अदालत है। इस अदालत की हद कहां तक होगी? जहां जहां ये बाबली निजाम पाया जाता है और पाया जाएगा, जहां जहां, तो फिर आप अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया के वो कौन कौन से ममालिक हैं जहां पर यह निजाम पाया जाता है और लोगों का खून किया जाता है। कौन है जो जा बजा हर जंग में अपने आप को आगे रखता है? बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन यहां पर मैं यही कहूंगा, उस दुनियावी और उस सियासी और मजहबी निजाम का मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा और खुदा खुद अपने लोगों की अदालत करता है। और यह बात हमारे लिए बड़ी गौर तलब है कि अपने लोगों के बिहाफ पर जिनका खून बहा है, रसूलों और नबियों का और मुकद्दसों का, अब खुदा उनके बिहाफ पर अदालत कर रहा है और बाबल सफाए हस्ती से मुकम्मल तौर पर नेस्त और नाबूद हो जाएगा। जब हम 19 बाब में जाएंगे तो फिर मौजू हमें बदलता हुआ नजर आएगा, फिर हमें बड़ी खूबसूरती नजर आएगी जो मुकद्दसों की उम्मीद है। मैं एडवांस में उसके ताल्लुक से कोई टेस्ट देना नहीं चाहता स्टडी के जरिया से। आप खुद 19 बाब का मुतालिया कीजिएगा, चाहे तो 4 बाब जो बाकी हैं उनका, ताकि हम और बेहतर तरीका से इस बाब को और मुकाशफा की किताब को बेहतर तौर पर समझ पाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो इस कलाम को सुन रहे हैं, खा किसी ही फॉर्मेट में और जहां कहीं आप हैं, अगर किसी भी तरह से आपने दुनियावी निजाम के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है, यानी इब्लीस के साथ, आज वक्त है कि खुदावंद की तरफ तौबा करके रजू लाए। देर तो ऑलरेडी बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी खुदावंद तहम्मुल किए हुए है कि तौबा करके उसकी तरफ रजू लाए, ताकि खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। मैं आपके लिए कलील सी दुआ करना चाहता हूं। रब्बुल अफवाज, ममनून हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जिसके जरिया से आप हमें सैर और आसूदा करते हैं, दिलेरी बख्शते हैं, हौसला बख्शते हैं और मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाते हैं कि क्या होने को है। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि हमें जो आपके हैं अपनी पोशाक की हिफाजत करने का फजल अनायत फरमाए और वह तमाम अजीज भाई और बहनें और नौजवान जो इस कलाम के वसीला से टूटे और वह नहीं चाहते कि उस मुसीबत के जमाने से हो गुजरे, वो नहीं चाहते कि बाबल की तरह उनका काम तमाम हो।
खुदाबंद दुआ करता हूं कि उन्हें तौबा की तौफीक अनायत फरमाइए। पाक रूह की तहरीक से उनके सख्त दिलों को तोड़िए और अभी अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए खुदाबंद यीशु आप पर शख्सी तौर पर ईमान लाए और अपने दिल का दरवाजा आपके लिए खोले कि आप उनके दिलों में सुकूनत पजीर होने वाले हो। साथ ही साथ वो तमाम जो बीमार हैं, परेशान हाल है, दुखी है, गमज़दा है, खानदानों में लड़ाइयां और झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, यीशु के नाम से इन तमाम देवताओं को झुक जाने का हुक्म देता हूं और खुदाबंद चाहता हूं शिफा की नदियां जारी कीजिए और अपने लोगों को बरकत पर बरकत अनायत फरमाइए। इस कलाम को हमें अपने दिलों में रखने का फजल बख्शिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे खुदाबंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज।